दोबारा क्रोमेटिन कॉम्पैक्ट कंफर्मेशन में कन्वर्ट हो जाता है. Beside this histone acetylation and deacetylation, there is some other modification as well, जिनमें अच्छा ये जो एसिटाइलेशंस हैं ये टिपिकली लाइसिन रेसिड्यू के ऊपर होती हैं, और हिस्टोन की एसिटाइलेशन के अलावा हिस्टोन की फास्फोराइलेशन भी होती है और इसकी मिथाइलेशन भी होती है. हिस्टोन की एसिटाइलेशन सेलेक्टिवली लाइसिन रेसिड्यू पे, फास्फोराइलेशन सीरीन रेसिड्यू पे जो काइनेज एंजाइम करते हैं सीरीन थ्रियोनिन पे, लेकिन सीरीन एक्चुअली सीरीन एट पोजीशन नंबर 10, ये दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट पोजीशन ऑफ द सीरीन अमाइनो एसिड फॉर द हिस्टोन कंफर्मेशन. हिस्टोन सीरीन एट पोजीशन नंबर 10 फास्फो ससेप्टेबल होते हैं फॉर द फास्फोराइलेशन जो एक्ट करते हैं एज अ डॉकिंग साइट फॉर द अदर प्रोटीन्स, और मिथाइलेशन ऑफ द लाइसिन. तो हिस्टोन में 3 किस्म की मॉडिफिकेशंस की कंफर्मेशन को चेंज करती हैं. Histone acetylation at lysine residue, histone phosphorylation at serine residue, and histone methylation at again the lysine residue. तो methylation of lysine, अब methylation 2 पोजीशन पे होती है और दोनों H3 हिस्टोन पे methylation होती है. तो methylation, the first site is methylation of lysine at position number 4 of H3, and the second position is methylation at position number 9 of lysine on the same histone 3 molecule. इसमें H3 का lysine 4 का इफेक्ट है वो एक्टिवेशन का इफेक्ट है कि जब whenever methylation occur at lysine 4 of the H3 histone particle, it leads to activation. While on the other hand, methylation at position number 9 of the lysine residue at the same H3 molecule, it leads to the inactivation of the gene. So methylation 2 positions पे होती है, lysine 4 position पे, lysine 9 position पे. lysine 4 position पे इफेक्ट इसका एक्टिवेशन का होता है और methylation at position number 9 पे इसका इफेक्ट इनएक्टिवेशन का होता है. So this diagram describes the whole story behind the chromatin remodeling that is involved in genomic imprinting. इस dotted lines के ऊपर जितनी भी modifications आपको नजर आ रही हैं, all these are involved in silencing the chromatin structure, means compact chromatin structure. So compact chromatin structure of course lead to the silencing of the gene in genomic imprinting, जहाँ पे imprint produce हो जाए. And below the dotted line जो आपको green color के नजर आ रहे हैं, ये वो modifications हैं which is basically involved in activating the chromatin structure, means the chromatin structure will open up and leads to the gene activation. So K9 means lysine at position number 9. इसकी acetylation, acetyl removal, sorry, जो आपको dotted नजर आ, ये 2 किस्म के acetyl, ये acetyl group addition जो full solid line है, और जो line dotted नजर आ रही है means acetyl group removal. So acetylation भी lysine number 9 पे होती है, और lysine number 9 की acetylation deacetylation, sorry, lysine number 9 की deacetylation और same इसकी methylation, both leads to the inactivation of the chromatin, means compact conformation. अच्छा, और दूसरी तरफ एक्टिवेशन में सेम लाइसिन नंबर 9 पे एसिटाइल ग्रुप एडिशन and lysine number 4 पे methyl group की addition. These two chemical modifications they lead to the active group. अब acetylation और deacetylation के behind phenomena क्या है? Actually deacetylation तो ठीक है, जो deacetylation actually interaction को weak करती है, लेकिन जो methylation है, methylation basically HP1 प्रोटीन, और HP1 प्रोटीन के बाद ये अगर आपको ये नजर आइए MBD मिथाइल CpG बाइंडिंग डोमेन ऑफ मिथाइल CpG बाइंडिंग प्रोटीन्स, ये उनकी डोमेन्स होती हैं जो मिथाइलेटेड DNA एज वेल एज मिथाइलेटेड प्रोटीन रीजन्स को रिकॉग्नाइज करती है, और उसके बाद ये रिक्रूट करती हैं HDAC प्रोटीन्स को. HDAC प्रोटीन अगेन जहाँ जहाँ पे एसिटाइल ग्रुप ऐड होते हैं, उन एसिटाइल ग्रुप्स को रिमूव कर देती है. अगेन इंटरेक्शन स्ट्रांग होती जाती है क्योंकि उनके पॉजिटिव चार्ज इंक्रीज होता जाता है हिस्टोन के ऊपर,
और डीएनए के ऊपर नेगेटिव चार्ज होते हैं, इंटरेक्शन स्ट्रांग होने की वजह से क्लोज कन्फर्मेशन और कॉम्पैक्ट कन्फर्मेशन, कंडेंस कन्फर्मेशन। यानी मिथाइलेशन के बिहाइंड भी फिनोमेना यही है कि मिथाइलेशन अल्टीमेटली it leads to the recruitment of the HDAC histone deacetylase complexes. और ये हिस्टोन deacetylase complexes बेसिकली इंटरेक्शन और मेन थीम, मेन फिनोमेना भी यही है to increase the interaction and to decrease the interaction. Increase of interaction will lead to the compact conformation and decrease of interaction will lead to the relaxed conformation. इम्प्रिंटिंग के फिनोमेना से एसोसिएटेड जो डिसऑर्डर्स हैं, वेल नोन एग्जांपल्स हैं, आप लोग ऑलरेडी भी पढ़ चुके हैं, जस्ट नॉलेज को रिफ्रेश कर लेते हैं। तो टू वेल नोन डिसऑर्डर्स हैं प्रेटर-विली एंजलमैन सिंड्रोम। प्रेटर-विली एंजलमैन सिंड्रोम सिस्टर डिसऑर्डर्स है इसलिए क्योंकि दोनों सेम क्रोमोसोमल रीजन की एनॉमली की वजह से काज होती है और इन दोनों, और ये वो कौन सा रीजन है, बेसिकली क्रोमोसोम 15 का लॉन्ग आर्म का रीजन 1 से लेके 1-3 तक का रीजन। प्रेटर-विली सिंड्रोम, एंजलमैन सिंड्रोम, डिफरेंस क्या है इसमें? डिफरेंस ये है कि प्रेटर-विली सिंड्रोम तब काज होता है जब पैटर्नली हो जाए, मैं बताती हूँ। सॉरी जी, सो प्रेटर-विली सिंड्रोम और एंजलमैन सिंड्रोम दोनों डिसऑर्डर काज होते हैं ड्यू टू सेम जेनेटिक एनॉमली। और क्या जेनेटिक एनॉमली है? डिलीशन ऑफ सर्टेन सब क्रोमोसोमल रीजन ऑन क्रोमोसोम 15, और वो सब क्रोमोसोमल रीजन है on the long arm of chromosome 15. We start from region 11 Q11 से Q13 तक, और दोनों सिंड्रोम में ऑलमोस्ट सेम रीजन होते हैं जो डिलीट होते हैं। लेकिन डिफरेंस क्या है? डिफरेंस ये है कि प्रेटर-विली सिंड्रोम में डिलीशन होती है ऑन द पैटर्नल रीजन, ऑन द पैटर्नल क्रोमोसोम, क्योंकि वो जीन जिसकी एक्चुअल वजह से ये डिजीज काज होती है उन जीन्स ने एक्सप्रेस होना होता है पैटर्नल कॉपी से, और मैटरनल कॉपी पे वो जीन इम्प्रिंट होते हैं। तो चूंकि पैटर्नल कॉपी पे ओरिजिन डिलीट हो चुका होता है, जीन होता नहीं है, और मैटरनल इनहेरिटेड कॉपी से चूंकि ये रीजन कंप्लीट रीजन इम्प्रिंटेड रीजन होता है, तो वो जीन सुप्रेस होता है ऑलरेडी, तो जीन की कॉपीज नहीं बन पाती। एज रिजल्ट इट लीड टू द पैटर्नल सिंड्रोम डिजीज। एंजलमैन सिंड्रोम के केस में डिलीशन सेम रीजन पे होती है, Q1 से Q13 तक का रीजन, लेकिन वो जीन्स जिनकी एक्चुअल म्यूटेशन की वजह से एंजलमैन सिंड्रोम की डिलीज काज होती है, उन जीन्स ने एक्सप्रेस होना होता है मैटरनल कॉपी से, लेकिन चूंकि और वो इम्प्रिंट होते हैं ऑन द पैटर्नल कॉपी, तो चूंकि डिलीशन होती है ऑन द मैटरनल कॉपी जिससे एक्चुअली एक्सप्रेस होना होता है, वहाँ पे वो जीन प्रेजेंट नहीं होते, वो डिलीट हो चुका होता है। पैटर्नल कॉपी इम्प्रिंट होती है तो ऑलरेडी वो जीन वहाँ पे भी साइलेंट है, एज ए रिजल्ट जीन कॉपीज नहीं बनते, लीड टू द एंजलमैन सिंड्रोम। लेकिन फर्दर फाइन मैपिंग ने ये चीज़ एक्चुअली कंफर्म की है कि डिलीशन में तो चूँकि कैरियोटाइपिंग में या जो फिश की टेक्निक है, इसमें सिंगल जीन को मैप नहीं किया जा सकता, इसमें फुल कंप्लीट रीजन्स होते हैं, बिगर रीजन्स होते हैं जो मैप होते हैं। लेकिन माइक्रो एरे की टेक्निक या सीक्वेंसिंग की टेक्निक है, उन्होंने ये चीज़ कंफर्म की है कि एक्चुअली ये दो डिफरेंट रीजन है। एंजलमैन सिंड्रोम का डिफरेंट रीजन है और प्रेटर-विली सिंड्रोम का डिफरेंट रीजन है। प्रेटर-विली सिंड्रोम का रीजन इट इज मोर टुवर्ड द सेंट्रोमेरिक रीजन। एंजलमैन सिंड्रोम का जो रीजन है दैट इज डाउनस्ट्रीम, दैट इज प्रेजेंट डाउनस्ट्रीम टू द प्रेटर-विली सिंड्रोम रीजन, एंड इट इज टुवर्ड द टेलोमेयर रीजन। इस तरह यहाँ पे आप देख लें, this one is the centromeric region and this one is the telomeric region. तो इस केस में एंजलमैन सिंड्रोम जो है that is present toward the telomeric region, और प्रेटर-विली सिंड्रोम का रीजन जो है that is toward the centromeric region। और इस रीजन में ये 4 कैरेक्टराइज्ड जीन्स हैं जो probably इन्वॉल्व हो सकते हैं इन केस ऑफ प्रेटर-विली रीजन, कंफर्म नहीं है। लेकिन इन केस ऑफ एंजलमैन सिंड्रोम इट इज कंफर्म that this Angelman syndrome is caused due to suppression or due to mutation in this region। और ये सिंगल जीन म्यूटेशन की मैपिंग ये चीज़ कंफर्म की है कि ये UBE3A जीन है जिसकी एक्चुअल म्यूटेशन से एंजलमैन सिंड्रोम की डिजीज काज होती है। यूनिपेरेंटल एक्सप्रेशन होता है इसका, मैटरनल कॉपी से एक्सप्रेस होता है,
यहाँ पे चीज़ क्लियर है, ये वो जीन्स है रेड कलर के जीन्स जिन्होंने मैटरनल कॉपी से एक्सप्रेस होना है, और ये ब्लू कलर के वो जीन्स जिन्होंने पैटर्नल कॉपी से एक्सप्रेस होना है। तो पैटर्नल प्रेटर-विली रीजन में चूंकि इन जीन्स ने पैटर्नल कॉपी से एक्सप्रेस होना है, तो पैटर्नल कॉपी डिलीट हो चुकी होती है, मैटरनल से उसने इम्प्रिंट रहना है, सुप्रेस रहना है, इसलिए डिजीज काज हो जाती है क्योंकि जीन प्रोडक्ट नहीं बन पाता। दूसरी तरफ एंजलमैन सिंड्रोम एंजलमैन सिंड्रोम में जो रेड कलर के जीन्स हैं ये मैटरनली एक्सप्रेस होने, पैटर्नल जो रीजन है वो सुप्रेस रहना है। तो और चूंकि मैटरनल रीजन ने एक्सप्रेस होना है और मैटरनल रीजन डिलीट हो चुका हो, तो मैटरनल कॉपी डिलीटेड होती है, इसलिए एंजलमैन सिंड्रोम पास हो जाता है क्योंकि पैटर्नल जो जीन्स होते हैं वो ऑलरेडी सुप्रेस होते हैं, इम्प्रिंट होते हैं। तो इम्प्रिंटिंग के फिनोमेना, once again just look at this slide again. Imprinting is one of the example of the illegal exclusion, but it is not a random phenomena. It follows the parent of origin expression pattern. In maternal copy express होगी तो paternal suppress होगी, या paternal express होगी तो maternal suppress होगी। किसी एक parent की copy express होगी, दूसरी parent की copy suppress हो जाएगी। Imprinting का phenomena already set हो जाता है during the gametogenesis, और then based on the gender again gametogenesis is set होता है। क्योंकि इसमें सेल को नहीं पता चलता कि कौन सी कॉपी पैटर्नल है और कौन सी कॉपी मैटरनल है, इसलिए फिनोमिना ऑलरेडी सेट हो जाता है ड्यूरिंग द गैमेटोजेनेसिस। सॉरी, मेरी आवाज आ रही? जी सर आ रही है। ठीक है। और इम्प्रिंटिंग के बिहाइंड एक्चुअल फिनोमिना है वो है क्रोमेटिन रिमॉडलिंग का। और क्रोमेटिन रिमॉडलिंग में जो बेसिक मैकेनिज्म है वो है हिस्टोन एसिटाइलेशन डीएसिटाइलेशन का। एसिटाइलेशन weakens the interaction and deacetylation strengthen the interaction strengthen होगी between the DNA and the histone. It will lead to the compact chromatin conformation. Interaction weak होगी between the histone and DNA. It will lead to the open conformation open होगी तो active chromatin है और gene express होगा, और अगर condensed conformation है तो ये inactive chromatin structure है, heterochromatin है तो gene suppress हो जाएगा। लेकिन वो मॉडिफिकेशंस और हिस्टोन मॉडिफिकेशंस अपार्ट फ्रॉम द एसिटाइलेशन और कौन कौन सी हैं, वो है बेसिकली फॉस्फोराइलेशन एट सीरीन 10 एंड मिथाइलेशन ऑफ द लाइसिन। मिथाइलेशन में भी दो पोजीशंस हैं, मिथाइलेशन एट पोजीशन नंबर 4 ऑफ लाइसिन एंड H3 हिस्टोन, एंड मिथाइलेशन एट लाइसिन नंबर 9 ऑफ द सेम H3। पोजीशन नंबर 4 पे मिथाइलेशन leads to the active chromatin conformation, and position number 9 methylation leads to the suppressed conformation. ये डायग्राम रिप्रेजेंट कर रही है मॉडिफिकेशन केमिकल मॉडिफिकेशंस को both on the DNA as well as on the histone. DNA की मिथाइलेशन CG लिखा हुआ है, ये DNA की मिथाइलेशन है, और K9 की हिस्टोन की मिथाइलेशन। सो चाहे हिस्टोन की मिथाइलेशन हो या चाहे DNA की मिथाइलेशन हो, they ultimately lead to the recruitment of HDAC complexes, histone deacetylase complexes। इसका काम है हिस्टोन को रिमूव करना, एसिटाइल ग्रुप को रिमूव करना फ्रॉम द हिस्टोन। एसिटाइल ग्रुप रिमूव होंगे तो इंटरेक्शन स्ट्रांग हो जाएगी, क्योंकि एसिटाइल ग्रुप बेसिकली इम्पार्ट करता है नेगेटिव चार्ज। अब DNA की मिथाइलेशन किस तरह क्रोमेटिन को कॉम्पैक्ट कन्फर्मेशन में लेके आती है कि DNA का वो रीजन जो मिथाइलेट हो जाता है, वो मिथाइलेट होता है बिकॉज ऑफ द एक्टिविटी ऑफ DNMT1 DNA मिथाइल ट्रांसफरेज एंजाइम्स DNMT1। तो DNA मिथाइल ट्रांसफरेज एंजाइम CpG रीजन को मिथाइलेट कर देती है, उसमें साइटोसिन को मिथाइलेट करती है बेसिकली। तो साइटोसिन जब मिथाइलेट हो जाता है यहाँ पे बाइंड करती है मिथाइल CpG बाइंडिंग प्रोटीन। यही मिथाइल CpG बाइंडिंग प्रोटीन दे रिक्रूट द HDAC, or HDAC remove the acetyl, which again strengthen the interaction by imparting the positivity charge. Disorders of imprinting: Prader-Willi Angelman syndrome. Prader-Willi syndrome is caused due to deletion of the paternal copy, and Angelman syndrome is caused due to deletion of the maternal copy. Actual genes
actual region, Prader-Willi syndrome is more towards the centrometic region, and